Hello students, we were already discussing about the uniform motion in a straight line. हम motion straight line की बात कर रहे थे and we are through with the distance and displacement. Distance scalar थी और हमने जाना था displacement is your vector quantity. तो उनके difference I have already mentioned and it is very much clear to you. वैसे ही अब हम बात करेंगे speed, two more important quantities. One is speed and another is velocity. Let's understand each of them one by one. Speed क्या है? Speed, the time rate of change of distance of an object is called speed. अगर आप ऐसे ना बोलना चाहें तो you can say distance per unit time. आप इसे कह सकते हैं distance per unit time. You already know about this quantity. Speed is distance upon time. Its unit is meter per second. And its dimensional formula, very easy, that is LT minus 1. Meter is defined in terms of length and seconds in time. LT minus 1 is dimensional formula for speed. Now there are various types of speed. One is, let's see, discuss one by one. What are the various type of speeds? Uniform speed, variable speed. Uniform speed. What do you mean by uniform speed? नाम से लग रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज एक जैसी. यूनिफॉर्मिटी वर्ड, यूनिफॉर्मिटी इज ड्राइव्ड, दैट इज एक जैसा, बिल्कुल एक जैसी स्पीड रहेगी. इट मीन्स यहाँ पे स्पीड क्या कैसे कर रहे हैं हम? स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम. इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो नो नीड टू, इसको आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड कि स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां डिस्टेंस कैसा होगा? इक्वल डिस्टेंस. जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलेगी, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मोशन ऑफ बॉडी या मूवमेंट ऑफ बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. बॉडी ट्रेवल्स भी लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ बॉडी भी लिख सकते हो, और यू कैन से मोशन ऑफ ए बॉडी इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज योर यूनिफॉर्म मोशन. दैट इज रिटन एज, just by graph we can understand it. For example, this is your distance time graph. Here it is 1 second, 2 second, 3 second, 4. In 1 second if it moves 5 meters, suppose this is your 10 meters. In 3 seconds it is 15 meters, likewise. So the graph will be a straight line. So graph कैसा बनेगा? It will be a straight line. So this type of motion is known as a uniform motion. What happens in variable motion? Variable नाम से लग रहा है, there is certain variation either in time or either in distance. If a body moves, variable speed में क्या होगा? If a body moves unequal distances in equal interval of time, that is your variable speed. वो आपकी variable speed होगी. If a body moves unequal distance in equal intervals of time, equal intervals of time में बॉडी अगर unequal distance मूव कर रही है तो that is your variable speed. जो स्पीड वेरी कर जाती है उसे बोलते हैं हम वेरिएबल स्पीड. नाउ हाउ इट वेरीज? सेम, इट इज 1 second, 2, 3, 4. For example, in 1 second it is 5 meters, but in second it is not 10, it is somewhat 15, and in third second it is somewhat 17. Then you can't see that it is a straight line now. It has to be like that. It shows a variation. It will show certain variation. That is your variable speed. तो इसमें टाइम्स के साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स विल बी देयर, बट द डिस्टेंस विल बी चेंज. उसका डिस्टेंस चेंज होता जाएगा. देयर विल बी वेरिएशन इन द डिस्टेंस. लेट मी मेक इट वंस मोर. वेरिएबल का अगर ग्राफ बनाना हो तो यू कैन मेक इट इन ए ग्राफ पेपर आल्सो, और यू कैन सिंपली अगेन वेरिएबल स्पीड आई एम शोइंग.
यहाँ स्पेस कम था पहले. नाउ आई विल जस्ट मेक दिस डायग्राम अगेन. फॉर एग्जांपल वन सेकंड टाइम एक्सिस 3 4 5 6. Now here it is 5 meter in seconds. If it goes up to here, suppose 20, it goes up to here something 40, whatsoever you can say it is 40. So what will happen now? First second it is like that, second it is like that, in third second it is almost like that. You can say it has certain graph like that. This is your variable speed. Variable speed का जनरल ग्राफ ऐसे बनेगा. तो वेरिएबल स्पीड में what will happen? Unequal distance in equal intervals of time, or you can say equal distance in unequal interval of time. It can be any way out. Now the third thing which we have to know is average speed. Average speed. What is average speed? Average is मतलब अगर total distance क्या होता था? Actual path. कितना भी बॉडी ने एक्चुअल पाथ मूव किया है उसके टोटल डिस्टेंस को हम इसमें कंसीडर करते हैं. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी अपॉन टोटल टाइम for the completion of that distance is known as average speed. तो आप इसकी अपने आप डेफिनेशन बना सकते हैं. It is the total distance. सिंपली आप उसे ऐसे भी लिख सकते हैं. This is your average speed. S average will be the function of various speed S1 plus S2 plus dash up to Sn divided by number of, that is time factor. कितना टाइम लगेगा T1 plus T2. Likewise total time. तो स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड में हम देख रहे थे इफ पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस x1 x2 x3 एक्सेट्रा विद स्पीड s1 s2 s3 respectively in same direction, then total distance traveled, you know speed is distance upon time. Speed is distance upon time. यहाँ distance का फैक्टर हम suppose x1 ले रहे हैं and the time factor is t only and speed को हम s1 ले रहे हैं. तो what will happen? The t will be equal to time का फैक्टर आ जाएगा हमारे पास x1 upon s1 because distance we are considering here x1. तो total time आएगा x1 upon s1 plus x2 upon s2. Likewise average speed क्या होती है? Average speed होता है distance, this is your x1 plus x2 upon time. Time will be x1 upon s1 plus x2 upon s2. दोबारा से देखिए स्टूडेंट्स, total time is basically your distance upon speed, that is x1 upon s1. ये पूरा टाइम का फैक्टर है. और स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस की जगह हम लिखेंगे x1 प्लस x2 एंड इन केस ऑफ टाइम वी विल राइट x1 अपॉन s1 प्लस x2 अपॉन s2. दिस इज द थिंग विच वी हैव टू राइट. दिस इज योर एवरेज स्पीड. नाउ सपोज इन नेक्स्ट स्टेप इफ x1 इज इक्वल टू x2, अगर x1 इक्वल टू x2 हो जाए, दैट इज इफ x1 इज इक्वल टू x2 इक्वल टू x के बाद स्पीड हमारी मतलब डिस्टेंस वाला फैक्टर इक्वल हो गया. दैट इज बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस. अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है विद डिफरेंट स्पीड्स, इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स, उस केस में क्या होगा? x1 x2 इक्वल टू x. देन इन दैट केस now what will happen in that case? That is now S average is equal to, हमारे पास जो फार्मूला आया था वो आया था x1 plus x2, that is your for distance, and it is your x1 upon s1 plus x2 upon s2. Likewise now x1 plus x2 x के बराबर है तो यहाँ x रह जाएगा. x plus x will be here 2x. Now what will happen? Here again x will be outside, 1 by s1 plus 1 by s2. X cancel out हो गया. We are left with 2 s1 s2 upon s1 plus s2. This is your formula for average speed. ये average speed का formula होगा आपका when body cover equal distance with different speeds. Now we switch over to velocity. अब velocity क्या चीज है? जैसे आपको मैंने बताया था कि डिस्टेंस की जब हम बात कर रहे थे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जब हमने फर्क जाना था तो हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह सा
एक तरह का डिस्टेंस ही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, पर उसके पास डायरेक्शन होती थी, उसके पास क्या होती थी, डायरेक्शन होती थी। वैसे ही अगर स्पीड के पास कोई डायरेक्शन आ जाए, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, 50 किलोमीटर पर आवर साउथ, व्हाट्सएवर यू कैन, तो जब डायरेक्शन आ गई उसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट व्हाट्सएवर, तो हम कहेंगे दैट इज योर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी तो सिंपल सा तरीका है, स्पीड विद डायरेक्शन होती, तो ये भी स्पीड है बट इसके पास डायरेक्शन होती है, स्पीड विद डायरेक्शन इज योर वेलोसिटी। और यू कैन राइट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन राइट displacement per unit time, per unit time. This all thing you can go for displacement per unit time, आप सोच सकते हैं, you can go for rate of change of displacement, you can write about velocity like that, this is d upon t, here d is displacement upon time, unit will be same students, and dimensions will be also same, unit is meter per second, and dimensional formula will be your LT minus 1. This velocity is also of many types. One is your same like uniform velocity, equal displacement in equal interval of time. ये भी सेम आएगा स्पीड की तरह, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्प्लेसमेंट आएगा बस यहाँ पे, व्हेन बॉडी मूव्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रही है बॉडी में, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, एंड अगेन नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या आएगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वेरिएबल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं आप इसे, यू कैन से वेरिएबल वेलोसिटी और यू कैन से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज अगेन अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal intervals of, this is the way you have to do these things. So this is uniform velocity, this is your variable velocity, these are all the things. There is one more thing which is known as instantaneous speed and instantaneous velocity. Instantaneous speed क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, सपोज यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट ए से बी तक, आपको सिर्फ इतने से इंस्टेंट को जानना है, तो इतने से इंस्टेंट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। बहुत ध्यान से समझने से, कि स्पीड के केस में करें आप इंस्टेंटेनियस स्पीड समझें, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के रूप में इसे समझें, वेलोसिटी के रूप में, द थिंग एक्चुअली मैटर इज सेम, मैटर वही रहेगा उसके अंदर, क्या, इंस्टेंट का मतलब इतने छोटे से पोर्शन के लिए यू हैव टू फाइंड दैट इज इंस्टेंट, नहीं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब टाइम उस पर इतना छोटा है, इतना इंस्टेंट है, डेल्टा टी टेंड्स को 0 मतलब कि टाइम 0 हो गया, इट मीन्स इट इज अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम वेयर यू विल फाइंड इट। तो जैसे आपके कार्स में, ऑटोमोबाइल्स में लगा होता है ओडोमीटर, विच बेसिकली इज फॉर दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी, दैट इज, अगर सिंपल भाषा में लिखना है, स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड और velocity of an object at particular instant of time, instant of time, वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, या आप उसे वेलोसिटी की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। So these are the few things about velocity and speed. What is basic difference? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी के केस में स्पीड भी रहेगी, मीन्स स्पीड का मैग्नीट्यूड रहेगा, प्लस डायरेक्शन रहेगी। अगर स्पीड चेंज हो रही है तब भी हम बोलेंगे इट हैज़ सर्टेन वेलोसिटी, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी तो ऑब्वियसली इट हैज़ वेलोसिटी। आपने देखा होगा आपका जो फैन है, फैन में क्या होता है, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल जाती है। वाई? सी, सर्कुलर मोशन की एक बात करते हैं हम, सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे आपकी स्पीड कांस्टेंट है हर जगह पे,
स्पीड इज कांस्टेंट एवरी टाइम, लेकिन आप देख रहे हैं डायरेक्शन एवरी पॉइंट पे इट इज वेरिंग। अगर ये ऐसे जाना चाहता था, अब ये ऐसे मुड़ गया ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ इट वांट्स टू गो लाइक दैट, अगेन इट टर्न्स लाइक दैट, अगेन इट वांट्स टू गो लाइक दैट, इट अगेन टर्न्स लाइक दैट, अगेन इट वांट्स टू गो लाइक दैट, इट अगेन टर्न्स लाइक दैट, अगेन इट वांट्स टू गो लाइक दैट। ऐसे करके आपने देखा है कि हर पॉइंट पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब पंखे की स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे बदल रही है, यानी डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। दैट शोज दैट इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। खैर एक्सेलरेटेड मोशन अलग से आएगा, बट आई एम टेलिंग यू कि वेलोसिटी बेसिकली हैज लिंक विद द डायरेक्शन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर बेसिक डिफरेंस। नाउ सेकंड डिफरेंस इज सिंपल सी बात है, स्पीड हमारा स्केलर है, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। एंड व्हाट इज द थर्ड डिफरेंस? स्पीड कैन बी, मतलब जो स्पीड को जब हम मेजर करेंगे, और स्पीड और वेलोसिटी फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी अपनी बराबर हो जाती हैं। एट सर्टेन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी। So students, it's a uniform motion in straight line की graphical presentation. We are now studying the graphical presentation of uniform motion. Suppose x1 is its position for time t1 and x2 is its position for time t2. Now you can see from graph, आप किसी भी एक्सिस पे अगर हम स्लोप निकालें ग्राफ का, स्लोप is your perpendicular upon base. Here it can be PR upon QR. But basically, what is PR? PR comes out to be a change in distance or displacement, or anything you can consider here, and change in the time axis, t2 minus t1. So this is your PR is your x2 minus x1, and QR is your change in the time axis. That is equal to your change in displacement upon change in time is your velocity. So it means slope of the position time graph. That means slope of position time graph. हमें क्या मिला इस slope से? The slope of position time graph, what it gives? It gives us the velocity of that particle in a uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन में आप किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालना चाहेंगे, तो यू विल फाइंड इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू. That is all about your uniform motion in a straight line. Student, revise your concept of velocity, speed thoroughly. The reason is that sometimes technical question is asked. कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी ऐसा हो सकता है कि बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी बदल जाए, तो मैंने भी राइट रॉन्ग आंसर. अभी मैंने आपको बताया जैसे कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें स्पीड तो कांस्टेंट रहती है मगर वेलोसिटी बदलती रहती है. तो रिमेंबर दीज पॉइंट्स, स्टडी योर द कॉन्सेप्ट्स थॉरली एंड अंडरस्टैंड द वीडियो.